میرا نام فردوس ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ فردوس کو کسی سے بھی ملے 2 دن ہو گئے تھے۔ آج آخری پیپر ہونے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی جانا پڑا تھا، مگر نور پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے بتائے کہ علی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ جب فردوس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ پاگلوں کی طرح گھر سے بھاگی، تو اس کی ماں یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ عشق قسط نمبر 20 کا دوسرا حصہ۔ فردوس مت جاؤ، مگر میں تو اسے پتھر دل کی بن گئی تھی کہ کیا بتاؤں، آج زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں رضا نامی شخص کی بیٹی ہوں، جو کہ ایک پتھر دل انسان ہے۔ اس وقت جب میں یہ سب کچھ کر رہی تھی نا، تو واقعی لگ رہا تھا کہ ان کی ہی بیٹی ہوں۔ غلط کہہ رہی تھی آپ امی کہ میرے اندر ہر چیز آپ کی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرے اندر جو پتھر والا دل ہے، یہ شاید میرے باپ کا آ گیا ہے۔ دور کر دیا میں نے اسے اپنے آپ سے، اس کی محبت کو دور کر دیا اپنے وجود سے۔ اور کیا چاہ رہی ہیں آپ مجھ سے؟ بتا دیں، کیا میں اپنی گردن کاٹ کر رکھ دوں آپ لوگوں کے سامنے؟ کیا فائدہ سے زندگی کا؟ کیا فائدہ ہے امی؟ نہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں، نہ جی سکتی ہوں، نہ بول سکتی ہوں، میں اپنے من پسند لوگوں سے مل نہیں سکتی، نہ اپنی پسند کا کھانا کھا سکتی ہوں، نہ اپنی پسند سے کہیں جا سکتی ہوں، نہ ہی اپنی پسند سے محبت کر سکتی ہوں۔ زندگی اس کا نام تو نہیں ہے، اور بھی دنیا میں کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ اپنی پسندیدہ شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان میں میرا شمار کیوں نہیں ہوتا؟ میں کیوں سب سے الگ ہوں؟ کیا مجھے اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اپنی پسندیدہ لوگوں سے محبت کر سکوں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکوں؟ میری زندگی کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں امی۔ بچپن سے لے کر آج تک، جب تک آپ لوگوں نے بولا، جب آپ نے بولا میں نے وہ کیا، کبھی کسی چیز کے اوپر آپ کو منع نہیں کیا میں نے۔ اور آج جب میں نے صرف ایک چیز کا کہا، میں اپنے من پسند شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ چند ایک باتیں کر کے مجھے میرے باپ نے اس رشتے کے لیے خامی بھروائی، اور پھر اس کے 2 دن کے بعد مجھے کسی اور کے نام کر دیا۔ کسی کو میرا خیال نہیں آیا، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ فردوس تم کیا چاہتی ہو، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہیں، میرے باپ نے ہمیشہ کی طرح اور اپنے افسوس کے کہ آپ نے میرا ہاتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا۔ آپ کہتی نا کہ دور ہو جاؤ، اس سے ہو گئی میں اس سے دور، وہ کہتے ہوئے کسی معصوم سے بچے کی طرح روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے، جبکہ رابعہ نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر انتہائی افسوس میں گھر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک چیز تھی جو اس کے اندر اندر کھائی جاتی تھی، وہ اپنی بیٹی کے حق کے لیے کبھی بھی نہیں بول پائی۔ ایک بار اس نے کوشش کی تھی، ایک بار اس نے رضا کے ساتھ بہت زیادہ بحث کی تھی، تو بات اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ رضا نے رابعہ کو پورے 3 مہینے کے لیے اس کے ماں کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس نے ان 3 ماہ میں وہ ایک بار بھی نہ اپنی بیوی کو کچھ پوچھنے کے لیے آیا، اور نہ ہی اپنی بچیوں کو۔ وہ خوف رابعہ کے دل میں اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے ہر چیز کو اپنی قسمت، اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا۔ جس طریقے سے وہ روتی رہی، وہ تڑپتی رہی، آج اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو بھی روتا ہوا، تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ جیسے اپنے لیے اس وقت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، بالکل اسی طرح سے اسے اس وقت اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ فردوس، رابعہ کچھ دیر کے بعد اس کے قریب آئی۔ یہ دیکھیں امی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، آپ کہتی ہیں نا تو میں آپ کے پاؤں بھی پڑھ لیتی ہوں، مگر اس وقت آپ پلیز پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ پلیز امی، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پلیز دیکھیں، میں نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں، اسی حال میں رہنے دیں پلیز۔ مجھے کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں چاہیے، مجھے صرف تنہائی چاہیے امی۔ سب کہتے ہیں اچھی بیٹی ہے فردوس، آپ کی تو بن گئی اچھی بیٹی، چھوڑ دی اپنی محبت میں نے۔ فردوس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا، تو رابعہ کچھ دیر وہیں کھڑی کھڑی رونے لگی، مگر پھر تھوڑے وقت کے بعد اس کے ماتھے پر پیار کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 2 دن تک فردوس نے اپنا موبائل بند ہی رکھا تھا۔ اس نے نہ ہی تو کسی سے رابطہ کیا تھا، نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ اسے اس چیز کی بھی خبر نہیں تھی کہ علی خاور کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ 2 دن تک وہ اپنی آپ کو ہر لحاظ سے مصروف رکھ رہی تھی تاکہ اس کے دماغ میں علی کا کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے، مگر ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے بھول جائے۔ وہ تو اسے ہر حال میں یاد رہتا تھا۔ نور کے نہ جانے کتنی ساری کالز تھی جو کہ فردوس کے موبائل پر آ رہی تھی، لیکن اسے موبائل بند کر رکھا تھا۔ نور نے مجبوراً رابعہ کے نمبر پر فون کیا، جس پر رابعہ نے فردوس کو کہا کہ نور اس بات کرنا چاہتی ہے، مگر اس سے فون پر بھی نور سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی
वो वॉशरूम चली जाती तो कभी सोने का बहाना कर देती, कभी ये कह देती कि वो खुद ही बात कर लेगी, जबकि नूर फिरदौस के अली को बताना चाहती थी कि फिरदौस समझ रही थी कि वो अली के बारे में बात करेगी, कि वो अली खावर के साथ ये सब ना करे। फिरदौस इस वक्त इन हालात में नहीं थी कि नूर से किसी भी किस्म की बात करे। नूर को उसके पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ नूर समझ चुकी थी कि उन दोनों के दरमियान जरूर कोई बड़ी लड़ाई हुई है, जो कि नूर ने अली खाओ को इसकी मंगनी के बारे में बताया था कि उसकी मंगनी उसके दोस्त के भाई से हो गई है। बस यही वो दिन था जब से अली बिल्कुल खामोश हो गया था। नूर को इसकी ये हालत देखकर बहुत अफसोस होता था। दूसरी तरफ यासर भी बेहद परेशान था। वो 2 दिन अली और महरीन साहिबा के साथ अस्पताल में ही था। तीसरे रोज पेपर था। फिरदौस आज भी यूनिवर्सिटी लेट ही पहुंची थी, मगर अब की बार उसके दिल में ये चाह नहीं थी कि वो अली खबर को मिलेगी। बस वो एक नजर चुपके से ही सही, लेकिन देख जरूर लेगी। वो बस पेपर देने आई थी। आज आखिरी पेपर होने वाला था, फिर यूनिवर्सिटी आना जाना बंद होने वाला था। और फिरदौस से सुबह से ही बात करना चाह रही थी, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था, और फिर पेपर के दौरान तो वो उससे बात ही नहीं कर सकती थी। मगर जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो नूर तेजी से फिरदौस की तरफ भागती हुई आई, जबकि फिरदौस तेज तेज कदम उठाती हुई यूनिवर्सिटी के दरवाजे से निकल रही थी। फिरदौस, फिरदौस, मेरी बात सुनो, रुक जा। फिरदौस, नूर ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही हो तुम? नजरअंदाज कर रही हो तुम मुझे, कभी मुझे कभी अली को। क्या कर रही हो तुम सबके साथ? 2 दिन से तुम्हें अली की कोई खबर है कि वो कैसा है? तुम कर क्या रही हो वो मुझे बताओगी? हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। तुम मुझे बताओ ये सब कुछ क्या है? चंद दिनों पहले तुम्हारी मंगनी आमना के भाई के आमिर से हो गई थी, और तुमने मुझे इस बात के बारे में बताया भी नहीं। मुझे आमना ने बताया है। और तुम्हें पता है अली कावर की हालत क्या है? मुझे नहीं सुना कि वो किस हाल में है। क्यों फिरदौस, क्या हो गया तुमको? इतनी बदल कैसे गई हो? क्यों तुम्हें उसका हाल मालूम नहीं करना? मैं सबसे बेवकूफों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ कि तुमसे बात हो जाए। बेवकूफ की तरह मैं तुम्हारा नंबर पर कभी तुम्हारी अम्मी के नंबर पर फोन कर रही हूँ कि तुम्हें अली की हालत बताऊं, और तुम हो के इतनी बेहद हिस्स बनी हुई हो जिसकी की कोई हद नहीं। इतनी पत्थर दिल नहीं हो तुम। क्या हो गया है तुम्हें? नूर ने फिरदौस के दोनों बाजुओं को जोर से पकड़ के कहा। नूर, तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे क्या हुआ है? आज सुन लो, आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बताती हूँ। नूर उसे खामोशी के साथ देखती रही। फिरदौस की आंखें आहिस्ता आहिस्ता से भीगने लगी। तुम पूछ रही हो ना मुझे से क्या मुझे हुआ है, तो तुम आज भी जान लो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें से अपने बाबा को लेकर झूठ बोलती आ रही हूँ। बचपन में हर कोई मुझसे ये पूछता रहा कि ना तुम्हारे बाबा क्यों नहीं आते तुम्हें स्कूल से लेने और छोड़ने। कॉलेज में भी यही सवाल होता था। तुमने भी मुझसे एक बार पूछा था तो मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि वो मसरूफ होते हैं, जबकि हकीकत तो ये कि मैं अपने बाबा को एक नजर पसंद नहीं हूँ, क्योंकि वो लड़का चाहिए था, मैं लड़की पैदा हो गई। यही वजह है कि वो मुझसे बचपन से लेकर आज तक बहुत दूर हैं, और मेरी लड़की होने की वजह से वो आज तक नफरत करते आए हैं, और इसी नफरत को उन्होंने मजीद बरकरार रखा है, और अपने दोस्त के बेटे से मंगनी कर दी, मेरी जिसमें मेरी रजामंदी नहीं थी। और तुम जानती हो कि मैंने किस तरह की लड़की हूँ। तुम तो मुझे बचपन से देखती आई हो। तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा डरपोक हूँ, और मुझे डरपोक और बुज़दिल बनाने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने बाबा हैं। मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत अली के बारे में बात करने की, बाबा के खिलाफ खड़े होने की। मैं भी तकलीफ में हूँ नूर, मुझ पर थोड़ा अफसोस करो। मैं और अली दोनों एक दो ही जगह पर खड़े हैं, मगर अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। अली बहुत बहादुर है, मैं जानती हूँ कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन मैं अपने बाप से गद्दारी नहीं कर सकती, और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं। मैं खुद रोजाना मर रही हूँ नूर, और तकलीफ इतनी है कि तुम्हें क्या बताऊं, मगर मैं उसे अपना नसीब, अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया। फिरदौस अब की बार होने लगी। नूर बस खामोशी के साथ उसका चेहरा देखती रही। उसके चेहरे पर भी वही तकलीफ थी जो अली के चेहरे पर नजर आती थी। फिरदौस तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के पास जा चुकी थी, जबकि नूर वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिरदौस को अली की खबर कैसे दे। चंद मिनटों तक नूर खड़ी रही, जबकि फिरदौस गाड़ी में बैठ गई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट हुई तो नूर को जैसे होश आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी, उसकी गाड़ी निकल चुकी थी। नूर ने भी तय कर लिया था कि वो हर हाल में फिरदौस को अली का हाल बता करेगी। उसकी हालत मालूम होने के बाद फिरदौस अली से मिलने के लिए जरूर जाएगी। नूर भी फिरदौस की गाड़ी के पीछे गई। फिरदौस की गाड़ी उसके घर के दरवाजे पर रुकी।
तो नूर भी कुछ देर के बाद उसके पास घर तक पहुंच गई। फिरदौस अभी घर के मेन डोर से अंदर जा रही थी कि नूर पीछे से दौड़ती हुई आई। फिरदौस ने उसे एक नजर पलट कर देखा। दोनों की नजरें लम्हे भर के लिए मिली थी और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। अंदर चलो फिरदौस, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, नूर ने कहा। नूर से प्यार करते हुए कह रही थी। वो कमरे में आई तो राबे की नजर उन दोनों पर पड़ी। उन दोनों की शक्लों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों ही रो रही हूँ। अरे नूर बेटा, कैसी हो? इतने दिनों बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ, सब ठीक तो है? उसे देखते हुए बड़ी मोहब्बत से राबिया ने कहा, जबकि राबिया के चेहरे पर फिरदौस की शक्ल देखकर परेशानी थी। अल्लाह का शुक्र है आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ना, तुम अंदर आओ, आराम से बैठो फिरदौस के पास। फिरदौस, राबिया ने कहा तो फिरदौस ने उसे तेजी से कमरे में ले गई। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी, जबकि राबिया दोनों के लिए कुछ लेने के लिए किचन में गई थी। ये तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है? फिरदौस, अपनी शक्ल देखती है तुमने, कितना उतरा हुआ है और बेरौनक चेहरा लग रहा है तुम्हारा। यूं लग रहा है जैसे बीमार बीमार सी हो। क्या कर लिया है तुमने? दोनों ने अपना हाथ, तुम लोगों को देखकर अफसोस होता है। फिरदौस नूर की बात पर बहुत ही बेबसी से मुस्कुराई। मुझे पता है फिरदौस, तुम भी अली खाबर से बहुत मोहब्बत करती हो। फिरदौस ने एक नजर नूर को देखा। हाँ करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अली की जगह मैं अपनी जिंदगी में, मेरे दिल में कोई भी नहीं ले सकता। मगर शायद मेरा नसीब यही है, मेरे नसीब में अली खाबर की सिर्फ मोहब्बत है, अली खाबर का साथ नहीं। क्या क्या तुम्हारी बात हुई अली से? कैसा है वो? फिरदौस ने अपने दिल में मौजूद वो सवाल पूछा, यूं जैसे दिल में गहरी हसरत हो उसकी खैरियत मालूम करने की। नूर की शक्ल देखकर रह गई। उसके लहजे में बढ़ी मोहब्बत की शिद्दत इतनी थी कि नूर की आंखों में तेजी से आंसू आ गए। उन्होंने वहीं बैठे बैठे फिरदौस के दोनों हाथ, अपने हाथ मजबूती से पकड़े, जैसे अपने अंदर उसको सच बताने की हिम्मत जमा कर रही हो। तुमने मुझे बताया नहीं नूर, तुम्हारी इससे बात हुई है? कैसा है वो? ठीक तो है ना? नूर की आंखों में मजीद तेजी से आंसू आना शुरू हो गए और वो वही बच्चों की तरह बैठी हुई उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़े, अपना चेहरा झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ नूर, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि वो कैसा है। तुम्हारी बात हुई उससे? फिरदौस उसका चेहरा देखते हुए कह रही थी, जबकि नूर की सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी। नूर, एक नजर फिरदौस ने उसका चेहरा देखा, वो परेशान थी। क्या हुआ नूर, कोई मसला है क्या? कोई बात हो गई है? मुझे डर लग रहा है तुम्हारे इस तरह से रोने से। अली कैसा है? मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है ना? अब की बार वो रोने लगी। नूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम क्यों खामोश बैठी हो? मेरा अली कैसा है? ठीक तो है ना वो? फिरदौस ने, जिस दिन तुमको मुलाकात हुई थी उसकी रात को अली खावर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिरदौस, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो तुम्हें काफी दिनों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी तुम्हारी अम्मी का नंबर पर, कभी तुम्हारे नंबर पर। यूनिवर्सिटी में भी तुमने बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर तुमने नहीं सुना। फिरदौस, तुमने नहीं सुना। वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत जख्मी है, उसे बहुत चोटें आई हैं और बहुत बड़ी चोट उसे तुमने दी है। फिरदौस का चेहरा अचानक जर्द हो गया। उसके चेहरे को देखकर ये लगा जैसे कोई बंजर सी जमीन हो। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो सालों से मुस्कुराई ना हो। फिरदौस को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, जैसे किसी ने उसका दिल ट्रेन की पटरी के नीचे दे दिया हो। वो हैरानी से, बहुत हैरानी से नूर का रोता हुआ चेहरा देखती रही, जबकि उसकी आंखों से खुद भी आंसू टपक रहे थे। क्या हुआ फिरदौस, कुछ तो कहो। नूर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। फिरदौस, फिरदौस, कुछ तो बोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिरदौस ने बहुत आहिस्ता से आवाज में कहा, जैसे सदमे में। नहीं नहीं, अली को कुछ नहीं हो सकता। फिरदौस तेजी से खड़ी हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिरदौस, होश में आओ। नूर भी खड़ी हो गई। मुझे मुझे मेरे अली अली के पास पास जाना है, अभी अभी इसी वक्त। वो तेजी से भागने लगी तो दरवाजे से आती हुई राबे ने टकराई, जिसके हाथ में सामान से भरी ट्रे थी। उसे नीचे गिर गई। फिरदौस, राबे ने उसे देखा, वो रो रही थी जोर जोर से। फिरदौस, क्या हुआ बेटा? मुझे मुझे जाना है अभी। फिरदौस ने कहा। वो पागलों की तरह भागने लगी। फिरदौस, राबिया उसके पीछे जाने लगी। रुक जाओ फिरदौस। नहीं नहीं फिरदौस, कहाँ कहाँ जा रही हो? राबिया भी उसके पीछे भागी। नहीं आंटी, प्लीज प्लीज मत रोकिए उसे, जाने दे प्लीज आंटी। अली का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जाने दे उसे प्लीज प्लीज। नूर भी उसके पीछे भागी, जबकि राबिया अपनी अकलौती बेटी को यूं पागलों की तरह रोता हुआ भागता देख रही थी। वो खुद भी उस दीवाने लड़के की तरह उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। जारी है।